ਸੂਰਠ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ। ਘਰ ਪਹਿਲਾ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਆਪੇ ਆਪ ਅਪਾਹ। ਵਣਜਾਰਾ ਜਗ ਆਪ ਹੈ ਪਿਆਰਾ, ਆਪੇ ਸਾਚਾ ਸ਼ਾਹ। ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਆਪੇ ਆਪ ਅਪਾਹ। ਵਣਜਾਰਾ ਜਗ ਆਪ ਹੈ ਪਿਆਰਾ, ਆਪੇ ਸਾਚਾ ਸ਼ਾਹ। ਆਪੇ ਵਣਜ ਵਾਪਾਰੀਆ ਪਿਆਰਾ, ਆਪੇ ਸੱਚ ਵਿਸਾਹ। ਜਪ ਮਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾਹ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪਿਆਰਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਗੰਮ ਅਥਾਹ ਰਹਾਉ, ਆਪੇ ਸੁਣ ਸਭ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆਰਾ। ਮੁਖ ਬੋਲੇ ਆਪ ਮੁਹਾਹ, ਆਪੇ ਉਜੜ ਪਾਇੰਦਾ ਪਿਆਰਾ। ਆਪ ਵਿਖਾਲੇ ਰਾਹ, ਆਪੇ ਹੀ ਸਭ ਆਪ ਹੈ ਪਿਆਰਾ। ਆਪੇ ਬੇਪਰਵਾਹ, ਆਪੇ ਆਪ ਉਪਾਇੰਦਾ ਪਿਆਰਾ। ਸਿਰ ਆਪੇ ਧੰਦੜੈ ਲਾਹ, ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਾਖਤੀ ਪਿਆਰਾ। ਆਪ ਮਾਰੇ ਮਰ ਜਾਹ, ਆਪੇ ਪੱਤਣ ਪਾਤਣੀ ਪਿਆਰਾ। ਆਪੇ ਪਾਰ ਲੰਘਾਹ, ਆਪੇ ਸਾਗਰ ਬੋਹਿਥਾ ਪਿਆਰਾ। ਗੁਰ ਖੇਵਟ ਆਪ ਚਲਾਹ, ਆਪੇ ਹੀ ਚੜ ਲੰਘਦਾ ਪਿਆਰਾ। ਕਰ ਚੋਜ ਵੇਖੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪੇ ਆਪ ਦਿਆਲ ਹੈ ਪਿਆਰਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਹ, ਆਪੇ ਆਪ ਦਿਆਲ ਹੈ ਪਿਆਰਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਿਜ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਜਦ ਆਪ ਸਾਵਧਾਨ ਤੇ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋਏ ਜੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਮਹਿਰਮਤਾਂ ਤੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਜੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਵਰਤਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਤੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਇਓ। ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਨਿਰਮਲ ਹਿਰਦੇ 'ਚੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਾਲ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਖਸ਼। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਸੀਸ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾ ਕੇ ਜਪਣਾ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਵਾਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਸੰਪੂਰਨ ਰਹਿਣ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਾਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਾਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਲੰਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਉਪਜੀਵਕਾ ਦੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਮਨ ਹਾਲੀ ਕਿਰਸਾਣੀ ਕਰਨੀ, ਸ਼ਰਮ ਪਾਣੀ ਤਨ ਖੇਤ, ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ। ਇਹ ਬਚਨ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਵਨ ਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਲਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਰੋਜ਼ੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਨੌਕਰੀ ਚਾਕਰੀ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪਕੜ ਤੇ ਬੰਨ ਬਦੀਆਂ ਕਰਤਾਵਣੀ, ਬਸ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੰਨ ਬਦੀਆ ਕਰਤਾਵਣੀ, ਤਾਕੋ ਆਖੈ ਧਨ। ਜੋ ਮਨ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਮਨਸਾਵਾਂ ਬਦੀਏ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰੇ, ਨੇਕੀ ਜਾਂ ਬਦੀ। ਜੋ ਵਿਚਾਰ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਮਨਸਾ, ਜੋ ਤਰੰਗ ਬਦੀ ਵੱਲ ਜਾਵਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇ। ਮਨ ਦੀ ਦੌੜ ਜੋ ਬਦੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇ, ਬੰਨ ਬਦੀਆ ਕਰਤਾਵਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਕੋ ਆਖੈ ਧਨ। ਉਹ ਧਨ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਉਲਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਹਾਲਾਤ ਬੜੀ ਨਿੱਘਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕਦੇ ਉਦਾਸੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ 'ਚ ਵਰਤਾਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਵ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਕਦੇ ਕਿਤੇ, ਇੱਕ ਵਰਤਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਿਕਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸਾਡੀ ਉਹ ਗੱਠ ਜੋੜਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ 'ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਜਾਤੀ ਮਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕੀਏ। ਆਪ ਤੇ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਰੋਜ਼, ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਿਆਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਭਾਈ। ਜੋ ਵੀ ਕਿਰਤ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੱਝੇ, ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਚਾਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਹੱਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ ਬਾਬਾ, ਮਾਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਹੋਏ। ਮਾਇਆ ਕੋਲ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੱਡਪਣ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਕਰਦਾ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਕਰਦਾ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ? ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਬਚਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਵਾਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਚਨ, ਇਹ ਬੈਰਾਗ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਬਾਣੀ ਬੈਰਾਗਮਈ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੈਰਾਗਮਈ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਾਸ਼ਮਾਨਤਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਮਹੱਲੇ ਚੌਥੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ,
ये बैराग का दूजा पक्ष है भगती भाव च। महाराज मेरे हाथ वस कुछ नहीं, आ सारा पसारा तुहाडा है, तू ही ते तू वरत रहा है। तो मैं फिर ये रह के भी जानदा होया भी कि तू वरत रहा है, मैं अपनी मैं नहीं छड्ड पा रहा। तो जिहड़े गुरमुख ने, जिहड़े थोड़े बहुत चेतन ते प्रबुद्ध ने, फिर उन्होंने बैराग होना कि महाराज हो की रहा है तो तुसीं कला तो तुहाडी है, पर असीं अपना टिंड चकाना क्यों पाई फिरदे आ। इस गल नूं समझ सकीए, वरतदा आप है पर उहदे विच वरतना असां भी है। असीं बहुत जीआं दे इस पासे सुणदा पढ़दे कहंदे रब ही करदा, वाहिगुरू करदा, असीं की करिए। नहीं भाई, उस करता पुरख वाहिगुरू जी ने सानू भी साडे हिस्से दी मत, साडे हिस्से दी बुद्धि दिती हुई है, साडे हिस्से दी चेतना दिती हुई है, और असां अपने हिस्से दी इस मत ते बुद्ध चेतन वरत के जितना मर्जी विशाल संबंध स्थापित कर सकते हैं, विशालता नाल जुड़ सकते हैं। अज तक दे दार्शनिक लोग कहते हैं कि भाई सज्जे खब्बे जाण दियां सीमावां ने, पाबंदियां ने, पर उच्चे उठण वास्ते कोई हद नहीं। कितने विशाल मत हो सकती है, कितना विचारां करके जीवन पद्धर करके उतना उच्चा उठ सकते। उठ जाओ भाई, जितना उठ सकते हो। तो समझ रखिए कि है करते की रचना, पर ये मैनू भी करते ने कुछ कर्म करन दा अधिकार दिते। कल आपां वच रहे सां, बाकी जीव जूना मंडलों नूं कोई अधिकार नहीं, वो एक सिस्टमैटिक कर्म करते ने। मनुख नूं अधिकार है, इन सोच के कर्म करता है। इसे करके मनुख अपने कर्मां दा नतीजा खुद भुगतदा है। दूजे जीआं नूं इहदे नतीजे नहीं, क्योंकि वो तो आटोमैटिक करते ने, उन्हां नाल हुंदे ने, वो भोगते ने। असीं भुगतदे भी हाँ, असीं करदे भी हाँ। इस करके जो कुछ करिए सोच के समझ के, सो किछ कर जित मैल ना लागै। रोज पढ़ते हुए, ऐसा कम मूले ना कीचै जित अंत पछोताइए। तो विचार नूं समझ सकीए, ये करे कि मैं की कर रहा, मेरे आले दुआले तो है। महाराजा बड़ा प्यारा कल विच रहाओ पढ़ रहे सां, जप मन हर हर नाम सलाह। हे मना, इस गल नूं, इस रस नूं जानन वास्ते कि मैं इहदे विच जो करां शुद्धता प्राप्त हो सके, सिफत सलाह करिया कर, क्योंकि सिफत सलाह ही सब तुम दात है। सिफत सलाह की मिलेगा, कहने कि गुर किरपा ते, गुरु दी किरपा ते जो सिफत सलाह करेगा तो गुरु की कृपा मिलेगी। गुरु की कृपा मिलेगी तो की मिलेगा जी? पाइयै प्यारा, गुरु की कृपा ते प्रभु की प्राप्ति होंदी जी। और अज तक का साडा सिलसिला ही कहते हैं, अकाल पुरख वाहिगुरू जी ने साडे ते एक अचेत कृपा की है, सानू इत्थे पहुँचा दिता, गुरु की संगत विच पहुँचा दिता है। गुरु की संगत विच पहुँच के असां ने गुरु के कर्म उपदेश हुक्म नूं मनना है। जितना असीं गुरु के उपदेश नूं मन सकांगे, कमा सकांगे, उन्नी साडे ते गुरु की कृपा हो जाएगी। जिन्नी साडे ते गुरु की कृपा होएगी, उन्ना साडा भाग वड्डा हो जाएगा, उन्ना हिस्सा सानू बरकतां चों बख्शिशां मिल जाएगा, उन्ना ही परमात्मा मिल जाएगा। याद रखना, परमात्मा अजोड़ है, कोई जोड़ नहीं, पर सानू हक है असी कितना प्राप्त करना। जिसमें आदर्शन च कहना, अपने हिस्से का आकाश, अपने हिस्से की धरती, ये साडा है ना। अपने हिस्से की धरती साफ कर रखो, संसार च गंदगी पए ही ना। जे हर जी अपने हिस्से की गंदगी साफ कर देवे तो संसार च किते भी गंदगी होवे ही ना, पर असीं नहीं करते ना। तो जदों असीं अपने हिस्से की धरती साफ कर देंगे, तो आ जिथे आप बैठते ना, किते तजुर्बा करके देखना, उठन लगे ज़्यादा नहीं, एक गज, जिन्हों एक वर्ग गज, एक गज आला दुआला देख लेना, इतने कुछ पिया तो नहीं, कोई साजो समान ऐसा तो नहीं जो सुटन वाला चुकन वाला। बस बैठन लग्या एक गज जगह देख लो, उठन लग्या एक गज जगह देख लो। इन्नी साफ करके इत्थे कदे जगह सफाई की जरूरत ही नहीं पेगी। धरती का ये हाल है। समझ ली, मैनू की मिलेगा, मैनू प्यारा मिलेगा।
गुर किरपा ते पाइए प्यारा। प्यारा का रूप की है? परमात्मा का रूप की? परमात्मा अमृत है, परमात्मा बख्शिश है, परमात्मा अकाल है, परमात्मा एक बहुत वो पक्ष है जो असीम शक्ति तत्व है। गुर किरपा ते, गुरु की किरपा ते पाइए प्यारा, प्राप्त होंदा है प्यारा। प्यारे का की स्वरूप है? अमृत। वो तो स्वरूप है अमृत, अकाल पुरख नूं कहने आ। ਉਹਦੀ बख्शिश मिलती, अमृत मिलता है। अमृत का की स्वरूप है? अगम अथाह है। अगम कहते ने बहुत वड्डा, जिसनों असीं नाप तोल नहीं सकते। अथाह जिहदे बारे असीं कोई था नहीं, अंदाज़ा भी नहीं ला सकते। हुण उहदा रूप की है? कैसा है? कहण लगे आपे सुण सब वेखदा प्यारा। ये नहीं जी कोई बोला है, देख सुन के देखदा है। और ये साडा मनुखी फितरत के स्वरूप नूं गुरु करता दे पक्ष च उभारे है। असीं कदों देखते हाँ? पहला कुछ आहट सुनते हाँ तो फिर उधर साडा ध्यान जाता है। कदे भी आप आराम नाल बैठे होइए, किसी पासे कोई हल्की जी आवाज़ आहट होवे, साडा ध्यान उस पासे जाता है। ध्यान जाण दे नाल ही साडी दृष्टि उस पासे चली जाती है, असीं उस पासे देख लैंदे हां। असीं आराम नाल बैठे हाँ, किसी पासे तो साडा नाम लैके कोई व्यक्ति पुकारदा है, सानूं सामने नहीं दिसदा, असीं सज्जे खब्बे देखण लग पैंदे, क्योंकि सुण वो धुन, वो आवाज़, साडा नाम साडे कन्नां च पिया है, उस नूं सुणिया, फिर देखदे हाँ किधरों पुकार आ रही है। आपे सुण सब वेखदा। जदों कोई प्यारा करता पुरख नूं इस तरह प्यार नाल याद करदा है, करता पुरख भी सुनदा जे, ते सुनदा जे ते फिर देखदा जे। जिन्ना चिर इसे करके सारे, खास करके अपने घर के ये गुरु नानक जी के घर सानू कहा जाता है, गुर करते दे के अरदास करया करो, पुकार करया करो, जाप करया करो। भाई साहब कहते होंदे सी, तुसीं इकल्ले बैठ के आनंद विच जाप करना ना, कदे मशीन वांग जाप मत करना। जिवें साडे बहु गिणती है, तबला खड़की जाता वा वाह वाहिगुरू 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 वाहिगुरू, पता ही नहीं कदों वाहिगुरू पूरा किया कि नहीं किया। इदां ना करया करो, मशीन ना बन जाओ। बड़े प्यार नाल कहा करो वाहिगुरू वाहिगुरू। जिवें एक छोटा जिहा बालका, वो अगली गल वैराग कितना गहरा हो जाएगा। छोटा जिहा बालका पुकारदा माँ माँ, नहीं सुनती, 2 4 10 बार नहीं सुनती, पर रोण तक चला जाता है, तो जो रोंदा है तो फिर माँ सुन लैंदी है। सानू एक सूत्र मिले अगे जाके पढ़ना अपने, रात दिवस के कूकने कभू के सुने पुकार। पुकार करया करिए, सुनदा है, क्योंकि बोला नहीं जी। आपे सुन सब वेखदा प्यारा। आपे सुनदा है, सुन के वेखदा है, फिर की करदा है जी साडा, क्योंकि करता पुरख नूं समझण वास्ते, क्योंकि उहदा ते पक्ष असीम है ना, साडे मनुखी फितरतां नूं ही समझाया जाता है। इसे करके रब दे बारे इहो जिहियां गल्लां बनदियां ने, क्योंकि रब दे बारे, वाहिगुरू दे बारे ते समझ ही नहीं पावांगे ना। जे सानूं बिल्कुल ज्ञान दे शिखर ते महाराज लैके जाण ते कहणगे चुप करके बह जाओ, बस बिल्कुल शून्य हो जाओ, हैगा जी असीं नहीं पकड़ पावांगे, क्योंकि साडी समर्था, साडी चेतनता इतनी विशाल नहीं है कि असीं उस शून्य नूं, उस मौन नूं, उस चुप नूं स्वीकार कर सकीए। असीं कहण कुछ सुणाओ, कुछ बोलो। इस करके गुरबाणी च करता पुरख नूं एक मनुखी व्यवहारां दे विच रूपांतरित करके उन्हां अलंकारां दे राहीं सानूं समझाया भी देख इदां हुंदा है ना। असीं कहने हाँ इदां हुंदा है, कहण लगे परमात्मा नूं तूं इदां कर ला। असीं सुणदे हाँ ते देखदे हाँ, परमात्मा सुणा नूं, सुनेगा तेरे वल देखेगा। अच्छा फिर की तीजा काम की करदे हो जी? मुख बोलै, जदों सुणदे हाँ फिर देखदे हाँ फिर बोलदे हाँ। साडे सौ मनुख दा इह फितरत है, और ये मन्निया जाता है कि जो करता पुरख दे निर्मल गुण ने वो सुत्ते सिद्ध हर मनुख दे विच हैगे ने। असीं उसनूं स्वीकार कर पाए, उभार पाए, जाण पाए नहीं। इसे करके संतां ने, भगतां ने कोई वखरे गुणां दी व्याख्या कदे भी किते नहीं कीती। जो सधारण मनुख नूं करते ने पैदाइशी चीज़ां दित्तियां, उहदे विच ही सब कुछ है।
जो सूत्र भी है, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे। जो ब्रह्मंडी प्रसारित करता पुरख दी रहमतां ने वो अंश अर के साडे विच भी करते ने पा दित्तियां ने। जे वो आप अमृत भंडार सागर है तो साडे अंदर भी अमृत दा खूह पा दिता है। आपे सुन सब वेखदा प्यारा, मुख बोले फिर बोलदा, आप मुहा फिर मूँह बोलदा। ये ठीक है, किसी करता पुरख दे मूँह की गल नहीं कर पावांगे, पर बोलदा तो फिर कित्थों बोलदा है? आज जितने प्यारे बोलते ने करता पुरख दे हुक्म सदकी ते बोलते। फिर मुख बोला है, आप मुखों बोलता है, मुहा मूँहों बोलता है। असीं जितने ते गुरमुखां दे इनू असीं च लैंदे हुंदे आ। किसी वडेरे नूं मिले, किसी आसीस मिली सानू, ये करता पुरख ने बख्शिश की है। एक सूत्रात्मक ने पहला सुनता है, फिर वेखदा है, फिर बोलता है। ये साडे मनुखी सुभाਅ ने, याद रखना। इन्होंने करता पुरख नाल जोड़ के देखना। पुकारांगे वो देखेगा, सुनेगा, देखेगा, नज़र पाएगा। फिर किते किते शायद, मैं शायद इस करके कह देवां कि मेरी बिसात तो, मेरी पकड़ तो पार है, किते शायद बोले, तू कौन रे, तू कौन है भाई। कोई भगत जन इस अवस्था नूं सुन सके, ਉਹਦੀ उस चुप की आवाज़ नूं कोई जान सके, वो पूछे तू कौन रे, तू कौन है। बोलता है, ये नहीं कि मैं बोलता नहीं, मैनू नहीं सुनाई दिंदा, बोलता है। नामदेव जी कहते ने, बोलता है, कहते ने नामदेव जी ने गल्लां बातां करते हैं। जदों सुनिया होना, सात घड़ी जब बीती सुनी, अज हुन आयो तरे पवन धनी, पाखण तन बाज बजाएला, गरुड़ चढ़े गोबिंद आएला। ये साडे तुहाडे दृष्टिकोण विच नहीं होना, साडी मत बुद्ध आम जीआं दे पकड़ च नहीं कि कित्थे बैठा नज़र आएगा, नहीं दिसेगा। पर भूलते हो तीन नामदेव नाल गलबात कर रहे ने। कहें तां धरनी कोडी करों, कहें तां लेकर ऊपर धरों, कहें तां मोई गौ द्यों जीवाए। जिवें सिख ने हसना, भाई काका की हाल है, जे तू कहें तो आ कर दईए, जे तू कहें तो इदां कर दईए, जे तू कहें तो इदां कर दईए। असीं अपने तो छोटिਆਂ ਨੂੰ कई बार लाड प्यार च कहने, जो तू कहे असीं कर देंगे। याद रखना, परमात्मा भी उही को करदा जो भगत कहिंदे ने। भगत मुख है ते बोलदे से बचन होवंदे, पर भगत फिर बोलते ही नहीं गे। भगत कुछ कहिंदे ही नहीं गे, चुप कर जाते, तू आ गए इन्ना ही बहुत है। कहने लगे फिर आपे वो जड़ पाइंदा प्यारा। बड़ा औखा है इस गल की व्याख्या करनी, तो इस गल समझना। असी दोष ला देने परमा, देखो जी आ जिन्ने गलत राहां ते बंदे तुरे ने, जे साडे तो गलत उन्हें पाया जी, असी थोड़ा कीता है। बड़ी छेती असी बरी हो जाने, दूजे नूं बरी कर देने आ। देखो जी फलाने बंदे ने गलत किया, उजड़ पै गया, गलत राह ते तुर गया, ये तो तुक पढ़ के सुना ने आपे उजड़ पाइंदा, उन्हें आपे पा दिता है। पर कदे वेख्या जी क्यों पाइंदा? उजाड़ के रास्ते किसी ने क्यों पाएगा? वो कोई दुश्मनी है? नहीं। आ कदे कदे वेख्या होना, असीं तुसीं अपने बच्चों को स्कूले पढ़न वास्ते भेजते हैं। अध्यापक इस गलों नाराज़ होंदे ने कि तुसीं भाई समय ते क्यों नहीं बच्चे नूं भेजदे। बच्चा समय ते ना आवे तां बच्चे नूं डांट मार भी पैंदी है। पर कदे वेख्या जी उसे बच्चे नूं वो जमात चों बाहर कढ़ के खड़ा कीता हुंदा है। जिस बच्चे नूं पढ़न वास्ते मापे भेजते ने, खर्चा दे रहे ने, जिहड़ा बच्चा देर ना आवे तो अध्यापक नाराज़ हो रहा है कि तू समय ते क्यों नहीं आउंदा। पर कदे कदे फिर उसे बच्चे का कन्न फड़ के जमात तो बाहर कढ़ दिंदा है। हुण आखिर कुछ पुछना पेगा ना, जमात के बाहर खड़ा होया बच्चा तो अंदर अध्यापक लैसन पढ़ा रहे है, असीं कहांगे अध्यापक मूर्ख है, इन्हें बाहर कढ़िया होया। उन्होंने पूछी तू बाहर क्यों खलोता है? कहेगा जी टीचर ने कढ़िया। भी सच्चा है, कढ़िया भी टीचर ने है। पर साडे वर्गा साधारण व्यक्ति कह लै असीं ते बच्चा पढ़ने भेजिया सी, तू बाहर क्यों खड़ा कीता है? हुण ये तो कोई नहीं दसेगा भी ये इन्ना खरूद करदा सी कि बाकी 40 बच्चों पढ़न नहीं सी दे रहा, इस करके उसनूं जमात चों बाहर कढ़ दिता है। जदों कोई समाजिक तौर पर अध्यात्मक तौर पर कोई खरूद करता ना जीवन दे विच, फिर उसनूं करता उजाड़ दे रस्ते पर लै, फिर तू उत्थे ठीक है। शायद एक इतिहास के घटना है भारी है, आम जी नूं समझना कठिन हो जाती है। सतगुरु हरगोबिंद साहिब जी
ਜਦੋਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚੋਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉੱਥੇ ਤੜਪਦੇ ਵਿਲਕਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਲੇ ਦੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਪਕੜਵਾ ਕੇ ਕੈਦ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਬਾਹਰ ਆਏ, ਮਿਲੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਚਰਚਾ ਚੱਲਿਆ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਚਰਚੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੰਦੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਲ ਤੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਆਗਰੇ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਚੰਦੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਚੰਦੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਖੀਆਂ 'ਚ, ਕਹਿਣਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁਰ ਤੇ ਬੈਨ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਡਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਗੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੰਦੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਉਜੜ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਰੂਦ ਮਚਾਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਖਰੂਦ ਮਚਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ ਵੀ ਇਸ ਖਰੂਦ ਦਾ, ਇਸ ਹੰਕਾਰ ਦਾ, ਇਸ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦਾ ਆ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੇ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕਰਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਨੇ ਸੁਣਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨੱਕ ਪਾੜ ਕੇ ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਦੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਰੋਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਨਕੇਲ ਪਾ ਕੇ ਕੁੱਕਰ ਵਾਂਗ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਂਗ, ਰਿੱਛ ਵਾਂਗ ਫੇਰਦੇ ਨੇ। ਆ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਰਿੱਛ ਨਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੱਕ ਪੜ ਕੇ ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਸੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਨਕੇਲ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਜੁੱਤੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੁੱਤੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂੰਜਾ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸੀਸ 'ਤੇ ਰੇਤ ਪਵਾਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਸਾਂ, ਗਰੀਬ ਸਾਂ, ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਰੇਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਕੀਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੜਛਾ ਮਾਰਨਾ ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ। ਜਿਸ ਕੜਛੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਤ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹੀ ਕੜਛਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ 'ਤੇ ਰੇਤ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਰ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੜਛਾ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਚੰਦੂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਉਜੜ ਹੈ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਨਜ਼ੀਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਅੱਜ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਮਤ ਕਰਿਓ, ਜੇ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਗਲਤ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਮਤ ਰਹੋ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਾਵ ਕਰਾਇੰਦਾ, ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇੰਦਾ, ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਿਉ ਆਪੇ ਉਜੜ ਪਾਇੰਦਾ ਪਿਆਰਾ। ਉਜੜ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰ? ਜੇ ਸਮਝ ਸਕ, ਜੇ ਉਜੜ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਆਪ ਵਿਖਾਲੇ ਰਾਹ, ਫਿਰ ਉਜਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਜੇ। ਉਜਾੜਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਜੇ, ਨਜ਼ੀਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ, ਮਤ ਦੇਣ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਬੱਚਾ ਸੌਰੀ ਮੰਗ ਲਏ, ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਖਰੂਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਜਮਾਤ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਿਛਲਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਬਣਾ। ਔਰ ਬੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਭਟਕ ਗਏ, ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਰਣੇ ਆਵੈ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੈ,
ये बिरध स्वामी संदा वापस आए, बख्शिशां मिल गईयां, फिर मान ते प्यार ते रुतबे भी बहाल हो गए, सब कुछ तो मिले। आपे उजड़ पाइंदा प्यारा, आप विखाले राह। पता क्यों? आपे ही सब आप है प्यारा। भाई ताकत कला तो दिए ना, वरत ते आप रहे। याद रखना, जे किसी जलाद ने किसी नूं फाहे टंगिया तो हुक्म तां भी मालिक दा है। राजे दे हुक्म दे नाल, मालिक दे हुक्म दे नाल ही सब कुछ हो रहा ना। तो जे किसी नूं दूजे थां ते सन्मान सिरपाव मिल रहा है तो भी राजे दे हुक्म नाल ही हो रहा। सीधे तौर पर राजा किते कुछ करता नज़र नहीं आता, पर जे किसी नूं इनाम मिलता तो राजे दे हुक्म दे नाल, जे किसी नूं सज़ा मिलती तो राजे हुक्म दे नाल, जे किसी नूं नहीं मिलती तो राजे दे हुक्म दे नाल, माफ़ी मिलती तो राजे दे हुक्म दे नाल, खाण पीण नूं मिलदा तो राजे दे हुक्म दे नाल, बंदी खाने पाए तो राजे हुक्म दे नाल, इनाम मिलिया तो राजे हुक्म दे नाल। हुक्म तो राजे का वरत रहा ना। जां सीधे फिर कहांगे राजा कर रहा है, पर राजा दिस नहीं रहा, राजे दे बंदे कर रहे हैं। इत्थे भी कुदरत की करता पुरख राजे दे बंदे ने, कुदरत दे जी कर रहे हैं, पर चेता रखना हुक्म तो ही वरत रहा, वो हुक्म दे नाल ही वरते आ। क्योंकि जैसा करते हैं, असी पिछे बचन पढ़िया सी, सतगुरु तो सब देखते भी नहीं, सतगुरु सब नूं देखते हैं, पर जिहा भाव तिहा फल पाया। आप इन्ने जी बैठे हैं, गुरु साहिब दे हजूर बैठे हैं, दरबार च बैठे हैं, प्राप्ति की होनी है? जैसा जैसा साडा भाव होएगा। प्राप्ति एक समान नहीं होनी, प्राप्ति का तत्त एक समान है, प्राप्ति तत्त इको ही है, पर प्राप्ति जो साडे प्रति है वो एक समान नहीं है। जिहा भाव तिहा फल पाया। जैसा साडा भाव है, तो दार्शनिक सियाणत तक चले जाते हैं, जैसे साडे अंदर विचार ने वो बलवान होणगे। जे पानी पाउण दे नाल जे गुलाब का फुल बहुत सोहना खिड़दा है, तो नाल दा कंडा भी बड़ा तिखा हुंदा जी। कंडा भी तो गुलाब के फुल उकी जड़ चों पैदा होए ना, वो सूल बड़ी तिखी है। किकर का बूटा उत्थे लगा होएगा तो उत्थे नाल ही एक अंब का बूटा लगा होएगा, तो पानी पएगा तो साल मगरों अंब बड़े मिठे आउणगे, पर चेता रखना सूलां भी बड़ियां तिखियां आउणगियां, क्योंकि ताकत तो पानी की है। जिहो जी साडी तासीर है ना बिरती, वो ऐसा बल वध जाता। इस करके बिरती नूं बदलनी इत्थे बैठ के अरदास करी, महाराज मेरी बिरती बदल दिओ। मेरी किरत तो नहीं बदली, मैं नहीं बदलना चाहता मेरी किरत। भाई को किरत भी बदल सकता है, पर किरत नहीं, बिरती बदलो अपनी। बिरती अगर हंकारी हुई तो हंकार वध जाएगा, सूल तिखी वध जाएगी, बड़ा बोल तिखा हो जाएगा। अगर काम की बिरती हुई तो काम वध जाएगा, लोभ की बिरती हुई तो लोभ वध जाएगा, हंकार की बिरती हुई तो हंकार वध जाएगा। इसे करके कौड़ा घुट भर के कहना पैंदा, बाणी पढ़न वाले अत्यंत हंकारी होंदे ने। पता क्यों? बिरती अहंकारी ने, बाणी पढ़ रहे हैं, हंकार वध रहा। वेखदा आप है, करदा आप है, क्योंकि वो मन नहीं करता। हाथ फड़ के किसका कुछ नहीं करते करता पुरख। पैसा भाई मनी सिंह दी गाथावां एक बड़ी प्यारी गाथा है, सुन समझना हो रही। उन्होंने तो किसी पूछा कि भाई साहब जी तुसीं ते बहुत सियाणे हो, ये दसो संसार की जो फितरत है, संसार का जो सुभाव है, ये च लोग रब का नाम जपते हैं, तो रब का नाम जप के लोगों का क्रोध वधे है, लोभ वधे है, बड़ा कुछ है। धर्म मंडलों के लोभ घट है, बहुत ज़्यादा लोभ है। शायद व्यापार मंडल च उतना लोभ नहीं है जितना धर्म के मंडलों के लोगों के लोभ है। संसार के लोगों च उतना क्रोध नहीं है जितना धर्म खेत्रों च क्रोध है। संसार च उतना मोह नहीं है जितना धर्म खेत्रों च मोह है। हस पे कह लगे तो नहीं पता, कह लगे समझ नहीं आ रही भी आउंदे सत्संगत च ने, पढ़ते सुनते बाणी ने, पर जो कार विहार च वरते इन्हां वर्गा कोई काम ही नहीं खिमा करना, इन्हां वर्गा कोई क्रोधी कोई नहीं, लोभी नहीं। भाई साहब ने बड़ा उदाहरण दिता, कह लगे कदे वेख तुसीं जाणदे हो खुराकां दे विचों सब तो बेहतरीन निर्मल ते पवित्र खुराक किहड़ी है? सारे अपने अपने दसन लगे जी आ खुराक आ खुराक। कह लगे सारियां तो निर्मल ते सब तो पवित्र ते सब तो चंगी खुराक घ्यो मन्निया जाता। सारे कह लगे हाँ बिल्कुल पवित्र भी है, क्योंकि पंचा अमृतां चों एक अमृत घ्यो है, और पहले दो अमृतां तो टप के तीजा अमृत घ्यो बनता है। दुध भी अमृत है, मक्खण भी अमृत है, तो तद जाके किते घ्यो बनिया ना।
सब तो पवित्र भी है, शुद्ध भी है, तो निर्मल भी। कहने लगे जी हाँ, पर तुहानूं पता जे घ्यो बंदा कच्चा खावे तो की होएगा। आपां हुण इन्हें जी बैठे हाँ, घरे जाके कड़छी भर के घ्यो पी के देखना, शाम तक नतीजे बाहर आ जाएंगे। होएगा कि अगर किसी के अंदर कफ रोग होया तो शाम तक कफ भर जाएगा, शरीर बलगम भर जाएगा, साह लेना औखा हो जाएगा। अगर किसी के अंदर पित्त का रोग होया तो शाम तक मरने पिया होएगा। तो जे किसी वायु का रोग होएगा तो गोडे जुड़ जाएंगे, उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा। आखे जी बड़ी पवित्र की चीज़ है, पहलवान खाते हैं, लोग उन्होंने पहले घ्यो खवाते हैं, तकड़े होणगे बंदे, पर असां तो घ्यो खादा सी ते बीमार हो गए। पता क्यों? क्योंकि असीं घ्यो नूं बिना बिरती नूं समझिया, बिना अपने अंदर की तासीर नूं समझिया, ते बिना घ्यो की ताकत अंदाज़ा लगाया असीं खा लिया। असीं भी इसी तरह ही करते हैं, अपने अंदर दा शुद्धता नहीं करते। मैले भांडे दे विच पावांगे तो दुध भी खराब होएगा, अमृतमई दुध भी मैले भांडे च पावांगे तो चंद घड़ियां दे पिछों जहर बन जाएगा। इसे करके कहते हैं भांडा धोए बैस धूप देवो तो दूधे को जावो। सियाने पूछे बाबा घ्यो खाना भी है, शुद्ध भी है, पवित्र ही है, ताकत की करिए? कह लगे सब तो पहला अपनी तासीर समझो, तेरे शरीर की तासीर की है। तो जे नहीं समझ आ रही तो फिर उसनों मिश्री च मिला के खा, तो खाने तो बाद खा। शायद सानू पता है साढ़े पंजाब के लोगों खाने तो बाद विच खंड घ्यो अज भी खवाया जाता रहा। खाने तो पहला नहीं कोई खवांदा, खाने तो बाद विच खंड घ्यो खवाया जाता रहा। तासीर समझ उहदी घ्यो दी, जो मिश्रित में एक स्निग्ध घ्यो हुंदा है तो घ्यो की विकृति खत्म हो जाती, तो हर जगह पर फिर लाहेबंद हो जाता। पर खाना उतना ही जितना तू हजम कर सकता होएगा। तैनू खुद पता होना चाहिए तू कितना हजम कर सकता है, सानू भी समझना चाहिए। महाराज कहने लगे वर्त ते कला दी अपनी वर्त रही है। असी दोष देखो जी रब दा कीता है, ये उजाड़े गलत काम करदा तो हुक्म च है ना, आपां चोरी करके तो हुक्म च है ना, आपां बड़ी छेती बरी कर देने, आप भी बरी हो जाने। देखो जी मारा मंदा चंगा हुक्म च है सब, आपां सौखे वेले, किसा गुनाह करता किसा माड़ा कम करता हुक्म च है सब। भी हुक्म च है पर सज़ा भुगतनी पएगी, क्योंकि भी हुक्म च है। फिर महाराज कहने लगे आपे ही सब आप है प्यारा, आपे बेपरवाह। पर चितरखना बहुत बेपरवाह जी, फिर परवाह नहीं जे करता जो सज़ा देण ते हुंदा, ना राजियां की परवाह करता है, तो इनाम देण ते हुंदा, तो ना किसी गरीब की परवाह। फिर लोग की कहणगे इन्ने गरीब नूं ना कुछ देता जे, तो इन्ने वड्डे राजे नूं चुक के जमीन ते सुट देता जे, फिर परवाह नहीं जे करता, क्योंकि बेपरवाह है। याद रखना अध्यात्मक मंडल विच असां ने बेपरवाह पदवी नूं प्राप्त करना है, लापरवाह नहीं बनना। असी देखते हैं इत्थे असी लापरवाह हाँ, अपनी ड्यूटी प्रति लापरवाह हाँ, अपने फर्ज प्रति लापरवाह हाँ, अपने धर्म प्रति लापरवाह, अपने कर्म प्रति लापरवाह हाँ। लापरवाह नहीं होना, असां बेपरवाह होना। तो बेपरवाही तद ही मिलेगी जब लापरवाही नहीं होएगी। जे लापरवाही की जे तो फिर बेपरवाही ना नहीं तुर सकते, क्योंकि फिर डरोगे मैं तो लापरवाह किया नहीं। लापरवाही जीरो होए फिर बेपरवाही 100 होती है। वो बेपरवाह क्योंकि लापरवाह नहीं होता, एक एक समा नियत है दा, एक एक मिनट तो बड़ा वड्डा है, एक एक साडा साह पाबंद है वो हुक्म च। क्या मजाल है कोई साह वध ले जाए, क्योंकि लापरवाह नहीं है ना, वो हुक्म बड़ा सख्त है, बड़ा पाबंद है। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਰਾ ਜਿੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਆਪੇ ਆਪ ਉਪਾਇੰਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਸਿਰ ਆਪੇ ਧੰਦੜੇ ਲਾਹੋ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧੰਦੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧੰਦੇ ਲਾਇਆ। ਆ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਥਾਂ ਤੇ ਧੰਦੇ ਲਾਇਆ। ने देखना भी जिस धंधे ला दिता है कि वो काम तुसी लापरवाही ना करते हो या वो काम तुसी बेपरवाही ना करते हो। उस काम नूं करदे तुसी ईमानदारी ना करते हो, बेईमानी ना करते हो, हंकार करके करते हो, लोभ करके करते हो, मजबूरी च करते हो कि प्रेम ना करते हो। बहुत सारे पक्ष ने चुन लेना अपना पक्ष की करते हैं। पाठ करते हैं मजबूरी च करते हैं, पाठ करते हैं प्रेम च करते हैं, ये अपना अपना है। तो जो करते हैं वही वधेगा। जे मजबूरी च पाठ करते तो मजबूरी ही वधी जाएगी। बहुत लोगों वेखिया
मजबूरी च पाठ आरंभ किया, सारी उम्र घरों मजबूरियां जांदियां ही नहीं, क्योंकि मजबूरी च कीता ना तो मजबूरी रहेगी, वधेगी मजबूरी। प्रेम च कीता हुंदा तो प्रेम वध जांदा। असीं ते कीता, असीं लापरवाही की, सारी उम्र लापरवाही नाल चलेगी। तो जिन्हां ने बेपरवाही का आलम हुंदा है वो फिर सारी उम्र बेपरवाही रहिंदे ने। गुरुदेव कृपा करने राह तत ने समझ सकीए आपे वरता है, आपे आप उपायंदा प्यारा, सिर आपे तंदड़े लाहो, फिर आप कराए साख्ती प्यारा, आप मारे मर जा। इस साख्ती का मतलब असीं था आम तौर पर सख्ती करते हैं, सख्ती दे नाल पैदाइश करते, सिस्टम के नाल हुक्म दे नाल हर जी नूं बना रहे हैं, हर जी की रचना, हर जी कुदरती ग्रो कर रही है, विकास कर रही है। तो जिन्हों प्यार नाल पहला बनांदा है फिर उसे नूं मार दिंदा है। जिन्हां फुल्लां नूं बड़े प्रेम नाल बड़े नज़ाकत नाल फुੱਲ खिड़दे ने, शाम पैण तो पहला पहला ढले मुरझाए हुंदे आ। असीं कहांगे इन्ने खूबसूरत फुੱਲ सी, शाम पैण तो पहला पहला खत्म भी करते, क्योंकि आप मारे दा हुक्म है ना। बल्कि जवान होने तो पहला कई बार संसार छड़ जाते हैं। साढ़े जी घर च हुंदा ना कई बार दुखांत, असीं कहने रब ये कहर क्यों वरतिया, नहीं ये कहर नहीं जी, उहदा हुक्म सख्त हुक्म है। किवें साढ़े पुराने कवियां चों एक वजीद कवि होए ने पंजाबी दे, शायद जिहड़े साहित्य पढ़न का शौक रखते उन्हें पता होएगा, उन्हें बड़ा प्यारा ते फिकरा लिखिया है, एक ना दे कर पुत पोतरे, एक ना दे कर धियां दोतरे, एक ना दा इको हिक, ते भी जाए मर, कौन कहे रब हिंज नहीं हिंज कर, कौन कहे भी इहदा नहीं कुसी रख लै, नहीं नहीं हुक आप मारे उहदा वर्त है, आप कराए साख्ती प्यारा, आप मारे मर जा। पता क्यों? आपे पत्तन पातनी प्यारा, आपे पार लंघाहो। पत्तन ते टिकिया होया माहौल भी आप दे। अज समझना पत्तन अड्डा, ते अड्डियां ते बुला बुला के बसां च बैठाण वाला वो बंदा भी आप जे, आपे बिठांदा जे, आपे पत्तन सवारदा जे, आपे तोरदा जे, आपे पार लगांदा जे, वो सब आप ही आप है। किवें आप है? असीं तो कहांगे 4-5 बंदे काम करते हैं, अड्डे ते कोई होर काम करदा, टिकटां कोई होर कट के दिंदा, ड्राइवर कोई होर नहीं। हुक्म इक्के मालिक दा, भाई मेरी प्रजा वास्ते इंतजाम करो। मालिक वरत रहा है, आ ते बाकी करिंदे ने उहदे, आ जितने लोग तो करिंदे ने, काम तो मालिक दा हो रहा ना। आपे सागर बोहिता प्यारा, संसार जे सड़कों ते अड्डे ने ते सागरां च पत्तन ते बोहित ने, सागर भी आप है, बोहित भी आप है। गुर खेवट आप चला, ते अपना जहाज आप चला रहा जे, जिन सिक्के ने गुरु का जहाज है, शब्द गुरु का जहाज है, चरण गुरु के जहाज ने, गुरु के जहाज बह जो ते पढ़ के इत बचन पढ़े आप। पत्तन कुकै पातनी वंजो त्रुक बिलाड़, पार पवंदड़े डिठ मैं सतगुर बेड़े चाड़। आपे पार लंघांदा है, आपे ही चढ़ लंघदा प्यारा, कर चोज वेखै पातशाह। आपे ही चढ़दा भी, साडे जियां दे रूप च वरता भी आप है, चोज भी आप करदा है, खेडां भी आप करदा है, वेखदा भी आप है। आपे आप दयाल है प्यारा, जन नानक बख्श मिला। ते आप ही आवर जिहड़ा पूरी तरह उहदे हुक्म च आ जांदा है, जिहड़ा पूर्ण तरह सरेंडर कर दिंदा है, उस नूं बख्श लैंदा है ते बख्श के फिर अपने विच मिला लैंदा है। नहीं तो ये खेल ते खला संसार च वरत रही है, किस नूं उजड़ पाया, किस नूं किते पाया, किस नूं किते पाया। किते भी कोई जी है, जिथे भी किते हाँ समर्पण कर दिए, सरेंडर कर दी। मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागे मेरा। तनुक बचन प्रवान करना, भुल चुक दी खिमा, आसीस ते प्यार दिन फतेह बुलावना जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। एक बेनती करते हैं, कल सवेर की कथा की हाज़री भाई हरवीर सिंह जी गुरमत प्रसार वाले करनगे, क्योंकि दासर ने अज दरबार समृतसर दर्शन परशन लिए जाना है। कल सवेर की हाज़री भाई हरवीर सिंह जी भरनगे, तो अज शाम की कथा की हाज़री भाई प्रदीप सिंह जी सुहाने वाले भरनगे। ये बेनती प्रवान करना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।